You're going to write this questions in your notes as well. Write down the अभी question. रफली लिखे ना. अभी रफली लिखो because अभी आपको कैलकुलेट करना है. You can have a logbook with you or you can do direct calculation. अभी मैं देख नहीं सकती तो. So let's go ahead with the sum. Blue light of wavelength 4700 angstrom. Blue light of wavelength 4700 angstrom is used to illuminate is used to illuminate एक मिनट is used to illuminate two slates which are separated by distance of 0.3 millimeters. How far from the slit must a screen should be placed? How far from the slit a screen should be placed so that fringes are 1 millimeter apart from each other. Fringes जो है 1 millimeter apart है. आपको कैपिटल डी की वैल्यू निकालनी है. Just try. ब्लू लाइट है जिसका वेवलेंथ दिया है 4700 एंगस्ट्रॉम्स. वो दो स्लिट्स बना रहा है, दो स्लिट्स को इल्यूमिनेट कर रहा है और वो दोनों स्लिट्स के बीच का डिफरेंस है डिस्टेंस है 0.3 मिलीमीटर. आप क्वेश्चन ये है कि कितनी दूर का डिस्टेंस आपके सोर्स को रखोगे, सॉरी स्क्रीन को रखोगे सो दैट आपको जो फ्रिंजेस मिलेगा वो 1 मिलीमीटर अपार्ट के डिस्टेंस पे मिलेगा. कैलकुलेट एंड गिव मी द आंसर. व्हाट यू कैन गो फॉर. एवरीवन इज डूइंग ना. हर कोई कर रहा है. मैं चेक करूंगी. हाँ मुझे फॉर्मूला बताओ कौन सा लगाने वाले हो. हाँ करो रिजॉइन साहिल. फॉर्मूला बताओ कौन सा लगाने वाले हो. एनीवन. मैम फ्रेंच विथ का फॉर्मूला. यस फ्रेंच विथ का फॉर्मूला यूज करोगे. व्हाट विल बी द फॉर्मूला. लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी बाय स्मॉल. यस so French width is equals to lambda capital D by small d का फॉर्मूला you are going to use. sorry it is lambda. अब आपके पास लैम्डा है, आपके पास फ्रिंज विड्थ है, आपके पास डिस्टेंस है. आपको कैपिटल डी कैलकुलेट करना है. सूरज, आकाश, कृष्णा कर रहे हो तुम लोग. ओम, बालाजी, ओम, आर यू देयर. yes or no. सेवन सेंटीमीटर्स. गिव मी इन मीटर्स. डिस्टेंस मीटर्स में निकाल के दो मुझे. yes 0.7 meters.
Nanma, Akansha, Ashwini. Muskan. What? Should we go ahead with the next sum? अब मैं जिसको पूछूंगी वही आंसर करेगा. ओके, डोंट आंसर एवरीवन. मैं जिसका नाम लूंगी वही आंसर बताएगा मुझे. Let's go ahead with the next sum. Sum number 2. Sum number 2. I presume. Okay. Two slits are made. Two slits are made 1 millimeter apart. Two slits are made 1 millimeter apart and screen is placed 1 meter away. What is the fringe separation? What is the fringe separation with blue-green light of wavelength 500 nanometer. ब्लू ग्रीन लाइट से आपका इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया है. दो स्लिट्स है और जो स्लिट्स रखी है वो 1 मिलीमीटर अपार्ट पे रखी है. योर स्क्रीन इज 1 मिलीमीटर अवे. यू नीड टू कैलकुलेट फ्रिंज विड्थ. आपको फ्रिंज विड्थ निकालना है. सेपरेशन बिटवीन द टू फ्रिंजेस. Go ahead for the formula and calculate the answer. मिस ये लैम्बडा क्या लिखा है आपने? लैम्बडा इज 500 नैनोमीटर. ओके. वेवलेंथ है वो. इसका आंसर मुझे ओम या बालाजी में से कोई देगा तो जल्दी सॉल्व करो. मिस 1 मिनट ऊपर करो ना. Mila Mania, what is the answer? How much you got? Yes, it is 0.5 millimeters. It is 0.5 millimeters. Akansha, Aya, Ashwini, Akansha, Manya. Yes, ma'am. Aya answer? आया. हाँ, वो अनम्यूट नहीं हो रहा था मेरा. Okay. Devika, okay, good. Aya, 0.5. Please mention your units as well.
That's always important. Shruti Aya. Great. Good. Let's go ahead with the next sum. Let's go ahead with the next sum. मैं check करूँगा. Please keep it in mind. You are solving your sums. मैं at the end जब सारे sums हो जाएंगे मैं check करूँगी आपने किया है कि नहीं किया है. नहीं किया होगा तो आप फिर 10-10 बार लिखना है एक sum मेरा गया है. Let's go ahead with the next sum. कुछ sums मैं आपके PDF में भी send करूँगी. कुछ sums हम यहाँ पे करेंगे. Question number 3. The part difference between two monochromatic waves, the path difference between two monochromatic waves, at a point is 85.5 lambda. दो वेव्स मीट कर रही है उनके बीच का पाथ डिफरेंस इज 85.5 lambda. If the path difference is 42.7 micrometer, if the path difference is 42.75 micrometer, find the wavelength of the light. Discuss it is dark or bright. Dark है या bright है वो निकालना है. And you have to calculate wavelength of a light also. And wavelength of a light. Start thinking about it and solve. पहले ये बताओ कि इट विल बी अ डार्क बैंड और इट विल बी अ ब्राइट बैंड. क्या होगा? क्वेश्चन नहीं समझा? समझो. दो मोनोक्रोमैटिक लाइट्स हैं, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट हो रही है. वहां पर पार्ट डिफरेंस इन द टर्म्स ऑफ लैम्बडा इज 85.5 लैम्बडा and in the terms of this number it is 42.75 micrometer. You need to discuss at this particular point whether the point is a dark or a bright point, means whether it will be a constructive interference or destructive interference, and wavelength you need to calculate of that particular light. Okay, miss. Yeah. आपको पार्ट डिफरेंस लैम्बडा के टर्म्स में भी दिया है और टोटल के टर्म्स में भी दिया है. अनेका करेक्ट. डार्क फ्रिंजेस आर फॉर्म.
Can you unmute yourself and answer me why it is dark fringe? Anika, can you unmute yourself and explain me why it is dark fringe? यस मिस. Go ahead. मिस वो डेल्टा एक्स इसमें ये दिया है 85.5 लैम्डा. Yeah. तो मतलब 86 माइनस हाफ ब्रैकेट में लैम्डा, तो विच इज इन द फॉर्म ऑफ n माइनस हाफ ब्रैकेट में लैम्डा. द अकॉर्डिंग Yeah, 2n minus 1. हाँ 2n, तो okay, fine. Go ahead. Go ahead. Correct. Anika, go ahead. हेलो मैम. हाँ, you're audible. बोलो. हाँ फिर वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग में तो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 42.75 माइक्रोमीटर्स इज इक्वल्स टू 85.5 लैम्डा होता है. Yeah. हाँ तो देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 42.75 माइक्रोमीटर अपॉन 85.5 which is equals to 0.5 micrometers. 0.5 micrometers, correct है? हाँ और फिर 0.5 micrometers that is lambda is equals to 5000 Armstrong. Yeah. तो वो डार्क में आ जाता है. क्यों डार्क में आ रहा है वो बताओ. Your answer is totally correct. Whatever you have solved is perfect. But can you explain me why you are saying that at this particular part difference you are getting dark fringe? मैम वो इंटेंसिटी कम होता है शायद इसीलिए. No. Can anyone else explain me? When you get a dark fringe, what is the condition for lambda when you get a dark fringe? मैम When you get a dark fringe, what is the condition for part difference when you get a dark fringe or when you get a destructive interference? Give me the condition. Just look at your notes or PDF, whatever you have. Just look at the condition, on what conditions you should get destructive interference. hello. You're audible. And the phase difference should be odd multiple of pi. Its phase difference should be odd multiple. And what about its wavelength? Wavelength का condition क्या होगा? What is the condition for part difference? Anyone here? अमला, अभिषेक, कोई बताएगा? कौन बता रहा है? मिस वो 2n minus 1 का कंडीशन फॉलो कर रहा है. Exactly. Actually यहाँ पर ये 2n minus 1 lambda by 2 का कंडीशन फॉलो करेगा. अगर आप इसको सॉल्व करो तो you will find the multiple of this lambda. Here you will find it in lambda by 2 के टर्म्स में आपको आंसर मिल रहा है. And you will get odd multiple of lambda by 2. That's why it is a dark fringe. This is the reason behind having a destructive interference, Anaga. It's not because of intensity. Of course, intensity becomes 0. That is correct. But how you're getting that intensity will be 0 by this particular condition. When you get odd multiple of lambda by 2, when you get odd multiple of lambda by 2, you find it that it is a destructive interference. This is a condition at which at this particular part difference you get a destructive interference. Yes. तो अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, let's try to solve it. और किसी को आया? अश्विनी, ओम, बालाजी, सूरज, और किसी को आया? नन्मा. What it is given? Part difference उसने दिया है in the terms of lambda. उसने कहा part difference is 85.5 lambda. ये उसका कंडीशन है. I want to, मेरे को पता है कि मैं अगर मेरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो मेरा केस जो होगा, if it is a constructive interference, so मेरा जो भी कंडीशन आएगा वो इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 आएगा. मैं ये बार बार आपको समझा रही हूँ. इट शुड बी इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2. और अगर डिस्ट्रक्टिव आ रहा है तो वो जो होगा, if it is destructive interference, it should be odd multiple of lambda by 2.
कंस्ट्रक्टिव है तो इवन मल्टीपल, डिस्ट्रक्टिव है तो ऑड मल्टीपल। अब मैं पहले इसको लैम्बडा बाई 2 में कन्वर्ट करने की कोशिश करती हूँ। लैम्बडा बाई 2 मतलब मुझे नीचे 2 चाहिए तो ऊपर भी 2 जाएगा। व्हेन आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, अगर मैं 85 को मल्टीप्लाई बाई 2 कर रही हूँ, आई एम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2 so that मुझे लैम्बडा बाई 2 के टर्म्स में आए। So when I multiply 85.5 into 2, I get 171. 171 lambda by 2. 171 is an odd multiple or even multiple? Answer. 171 is an odd number or an even number? Odd number. So you thought that it is odd multiple of lambda by 2. It is odd multiple of lambda by 2. So it is a dark French. जब आपको पार्ट डिफरेंस के टर्म में दिया है तो आप पहले क्या करोगे, जो भी पार्ट डिफरेंस है उसको लैम्बडा बाई 2 के टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे। अगर वो इवन मल्टीपल आता है तो वो कंस्ट्रक्टिव बनाएगा, अगर वो ऑड मल्टीपल आता है तो वो डिस्ट्रक्टिव बनाएगा। यही हम इतने दिन से सीख रहे हैं, 3 दिन से हम यही सीख रहे हैं, फिर भी आप लोगों के पास आंसर नहीं है इस चीजों का, क्योंकि आप लोग नहीं पढ़ रहे हो। आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, मैं स्ट्रेट बोल रही हूँ, आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, वरना ये कंडीशन अभी तक आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए थी। दिस कंडीशन शुड बी इनसाइड योर ब्रेन, क्या हाँ ये ऐसा है, ऐसा होने वाला है, ये आपको क्लिक होना चाहिए सीधा। नाउ दे आर सेइंग कैलकुलेट द लैम्बडा। आपको पता है कि इसका इक्वल्स टू में उसने कुछ एक वैल्यू दी है 42.75 माइक्रोमीटर, मींस दिस 171 पॉइंट लैम्बडा बाय 2 इज इक्वल टू 42.75 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर्स। यहाँ से आप सारी चीजें यहाँ लेके जाओगे, आपको लैम्बडा का वैल्यू मिल जाएगा। इट विल बी लैम्बडा विल बी 5000 एंगस्ट्रॉम्स। सबको समझा? सम क्लियर हुआ कैसे करना है? सो यू नीड टू थिंक अबाउट इट, सोचो। लेट्स गो विद द नेक्स्ट सम। Okay, let's go ahead with the next sum. Okay. A point is situated at, next sum, sum number 4. A point is situated at (6.5 centimeters and 6.65 centimeters from two coherent sources. एक पॉइंट है जो उन सोर्सेस से 6.65 और 6.5 सेंटीमीटर्स और 6.65 सेंटीमीटर्स के पाथ पे प्रेजेंट है। Find the nature of illumination at that point. Find the nature of illumination. Nature of illumination का मतलब पता है डार्क बैंड है या ब्राइट बैंड है, वो बताना है। Nature of illumination at that point if wavelength used is, means wavelength for a light is used is 5000 angstrom unit, that is angstrom. Give me the answer. दो स्लिट्स हैं, एक पॉइंट है, एक से वो 6.5 सेंटीमीटर्स पे प्रेजेंट है, दूसरे से वो 6.65 सेंटीमीटर्स पे प्रेजेंट है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको ब्राइट बैंड है या डार्क बैंड है वो निकालना है। आपके पास वेवलेंथ दिया हुआ है, वेवलेंथ इज 5000 एंगस्ट्रॉम यूनिट। हेलो मैम। बोलो मैम, मुझे जरा इमरजेंसी बाहर जाने का है, मैं लीव करूँ क्या? Who is this? साक्षी। साक्षी सरनेम? आनंद। यहाँ पे कोर्स से तो दूसरे साइड हम लोग को ये मिलेगा ना, क्या दूसरे साइड मिलेगा? प्रोजेक्शन स्लिट के दूसरे साइड मिलेगा ना, अगर ये साइड कोहेरेंट सोर्स हो तो। प्रोजेक्शन दूसरे साइड मिलेगा मतलब मुझे कंसेप्ट नहीं समझा। आप क्या किस बेसिस पे दूसरे साइड की बात कर रहे हो? ऑन व्हाट बेसिस यू आर टॉकिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज दिस?
Miss, question miss, find the nature of illumination at that point. Yeah. Okay, So what is the problem? नहीं कुछ नहीं यहाँ से it is having 6.5. यहाँ से having it is having 6.65. Yes miss, There's a समझ. quite difference between the two. Yes miss. Calculate the part difference. The part difference they will experience. क्या part difference experience करेंगे? उसको निकालो. लैम्बडा by 2 के टर्म्स में वो part difference even multiple आ रहा है, odd multiple आ रहा है. Anaga, it is 3000 lambda, correct? You got answer in 3000 lambda. Yes, miss. So you have to convert it into again. Convert yes, किसमें miss. करना पड़ेगा? कौन से टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको? Lambda by 2. हाँ, लैम्बडा बाय 2 में करने के बाद आपको वो इवन मल्टीपल मिलेगा या ऑड मल्टीपल मिलेगा. दैट विल डिसाइड that whether it is a bright point or it is a dark point. Convert it into lambda by 2. Yes, it is 6000 lambda by 2. That it is an even multiple of lambda by 2. Yes, miss. Bright. So it is a bright band. आया सबको आंसर? Done. Let's go ahead with the next sum. Next sum मैं directly आपको sum दिखा रही हूँ. And you try to solve it. Can you see the sum? देख सकते हो? Yes, miss. Sum is monochromatic light from a narrow slit illuminates two narrow slits 0.3 millimeter apart, producing an interference pattern with bright fringes 1.5 millimeter apart on the screen, 75 centimeters away. Find the wavelength of the light. How will the fringe width altered if the distance is doubled and the separation between the slit is doubled? आपको पहले वेवलेंथ निकालना है इस कंडीशन के लिए. उसके बाद वो बोल रहा है कि अगर डिस्टेंस डबल किया तो क्या असर आएगा और सेपरेशन डबल किया तो क्या असर आएगा. समझ में आया क्वेश्चन क्या है? This answer I want from Akansha. मैं ये आंसर आकांक्षा का चेक करने वाली हूँ. So please be prepared with the solution. Afterwards, I'll check Suraj book. एक बात याद रखना सम सॉल्व करते वक्त कि अगर आपको कोई भी लैम्बडा आता है, पार्ट डिफरेंस बोला है, तो उसको हमेशा आप लैम्बडा बाई 2 के टर्म्स में कन्वर्ट करके ही इवन और ऑड डिसाइड करोगे. यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट. यहाँ पे यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट द लैम्बडा. डिस्टेंस दिया है आपको, स्क्रीन और सोर्स के बीच का डिस्टेंस दिया है आपको, दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस दिया है. आपको सिर्फ लैम्बडा कैलकुलेट करना है. आपको फॉर्मूला पता है, W इज इक्वल टू लैम्बडा डी कैपिटल डी बाय स्मॉल डी. उसके बाद आपको दो केसेस दे दिए हैं. पहले केस में उन्होंने डिस्टेंस को डबल किया है, स्क्रीन और सोर्स के बीच का डिस्टेंस, और दूसरे केस में उन्होंने स्मॉल डी को डबल किया है, दैट इज दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस.
ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हुए हैं बोर्ड्स के। ओके, आपने ये दोनों कैलकुलेट किया, लैम्डा कैलकुलेट किया है आपने? व्हाट इज द लैम्डा? लैम्डा की क्या वैल्यू आई? 6.2 into 10 raised to minus 4 meter. 6.2 इंटू एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करो उसको, कन्वर्टेड इनटू एंगस्ट्रॉम। अभिषेक, हेलो एंगस्ट्रॉम में मिस, कन्वर्ट करो। हाँ बोलो। 10 raised to minus 7 आ रहा 6000 है। एंगस्ट्रॉम ना? 6000 एंगस्ट्रॉम यूनिट, करेक्ट। हाँ, लैम्डा इज 6000 एंगस्ट्रॉम यूनिट। 10 raised to minus 7 आ रहा है, उसको 6000 में कन्वर्ट कर दो सौरभ, you'll get into 10 raised to minus 10। हाँ मिस। Yes, Devika, correct. Should we go ahead with the next sum? मिस बोलो। मिस इसका आंसर्स दिखाओ ना मिस, सॉल्यूशन। नो सोल्यूशन नहीं मिलेगा, देखते हैं। यूज योर ब्रेन पावर। सोल्यूशन दिखाना होता तो मैं ही सॉल्व कर देती। आई वॉन्ट यू टू यूज योर ब्रेन पावर। ओके मिस। मैं इनमें से किसी के भी सोल्यूशंस आपको भेजने भी नहीं वाली हूँ, कीप इट इन माइंड। मुझे ये सारे क्वेश्चंस आपके बुक में सॉल्व चाहिए, नोट्स में चाहिए मुझे ये क्वेश्चंस। यस मिस। मिस मिस हाँ बोलो। मिस आप नोट्स कब चेक करोगे? I'll be checking your notes on, today is what, Wednesday. I'll check your notes on Friday. यस मिस। Done with the sums? Akansha, I answer, unmute करो खुद को। हेलो मैम। I answer, हाँ आया। क्या आया लैम्डा? लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम। डिस्टेंस डबल किया तो क्या आया? फ्रिंज विड्थ 3 मिलीमीटर। and what about the fringe width 0.7। when? Okay, fine, great, good. मैंने कैपिटल डी और स्मॉल डी में थोड़ा ये किया इसीलिए। So ये चीज ध्यान में रखनी है, इसलिए मैंने ये सम करवाया। Capital D is the distance between screen and the source, and small d is the distance between the two slits. आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि स्मॉल डी वो छोटा वाला डिस्टेंस है जो दो स्लिट के बीच में होगा, और कैपिटल डी वो बड़ा वाला डिस्टेंस है जो स्क्रीन और सोर्स के बीच में होगा, वो बड़ा होता है काफी। ठीक है, यस चलो लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट सम। अगेन आई एम शोइंग यू द सम। In Young's double slit experiment, the slits are 0.5 millimeter apart and interference pattern is observed on a screen placed at 100 centimeter from the slit. 100 centimeter पे आपका screen रखा हुआ है from the slit. It is found that 9th bright fringe is at distance 8.835 millimeter from the second dark fringe. 9th bright fringe और second dark fringe के बीच का distance दिया है, keep it in mind. Okay. From the second dark fringe, from the center of the fringe pattern, find the wavelength of the light used. लैम्डा निकालना है आपको। क्या करोगे?
स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस दिया है, सोर्स एंड स्क्रीन का डिस्टेंस दिया है, 9th ब्राइट फ्रिंज के सेंटर से या सेकंड डार्क फ्रिंज के सेंटर से 9th ब्राइट फ्रिंज के सेंटर का डिस्टेंस दिया है 8.835 मिलीमीटर। डार्क फ्रिंज के सेकंड डार्क फ्रिंज के सेंटर से 9th ब्राइट फ्रिंज के सेंटर का डिस्टेंस है ये। आपको वेवलेंथ निकालना है लाइट का, जो लाइट यूज्ड है। थिंक अबाउट इट एंड आंसर। एंड वी आर एज्यूमिंग दैट ये ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज दोनों एक ही साइड में है, दूसरे साइड में नहीं है, एक ही साइड में दोनों है। यू नो ना, सेंट्रल मैक्सिमा से दोनों साइड बनती है फ्रिंजेस, सो ये दोनों एक ही साइड में है। यू हैव टू एज्यूम दैट दिस 9th ब्राइट फ्रिंज एंड दिस सेकंड डार्क फ्रिंज बोथ आर ऑन द सेम साइड। किसी को कुछ क्लिक हो रहा है कैसे करना है, या मैं बताऊं? कुछ हिंट चाहिए आपको? हाँ मिस, थोड़ा हिंट दो ना। देखो, 9th ब्राइट फ्रिंज और सेकंड डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस उसने बोला है। लेट्स रिप्रेजेंट द डार्क फ्रिंज का एक्स। जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखो, जस्ट लुक एट द डायग्राम। इन सारी चीजों के लिए आपको डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन आना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है। ऐसे क्वेश्चंस आपके जेडब्ल्यू में आते हैं। दिस इज अ पैटर्न व्हिच वी गेट। दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा। यहाँ से हम जो डिस्टेंस निकालते हैं उसको हम स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ब्राइट से ब्राइट जो निकालते हैं या डार्क से डार्क निकालते हैं सेंटर से, दैट इज आवर फ्रिंज विड्थ। वो क्या बोल रहा है? लेट्स रिप्रेजेंट y2 dash as a second dark fringe and y9 as dash से रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो इट्स अ डार्क फ्रिंज। सिंपल से y से रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो इट्स अ ब्राइट फ्रिंज। y9 के बीच का मतलब y2 और y9 के बीच के सेंटर का डिफरेंस उसने दिया है, ये डिस्टेंस उसने दिया है। सो इट हैव गिवन y9 माइनस y2 डैश का डिस्टेंस उसने दिया है। कितना दिया है उसने? 8.835 millimeters. That is y9 minus y2 dash is equals to 8.835 into 10 raised to minus 3 meters. ये उसने दिया है, ठीक है। उसने उसके अलावा क्या क्या दिया है? उसने स्मॉल डी की वैल्यू दी है 0.5 into 10 raised to minus 3 meters. उसने कैपिटल डी की वैल्यू दी है 100 सेंटीमीटर्स, दैट इज 100 into 10 raised to minus 2 meters. आपको कैलकुलेट करना है लैम्डा, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब मुझे पता है y9 इज अ ब्राइट फ्रिंज, दिस इज अ ब्राइट फ्रिंज। सो y9 का अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं, व्हाट वाज द फॉर्मूला? इट वाज और अगर ये ब्राइट फ्रिंज है तो इट विल बी इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। ये इवन मल्टीपल होगा, करेक्ट? या इसको इस तरीके से भी, अगर इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 ना लिखा है तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। फॉर अ ब्राइट फ्रिंज, y फॉर अ ब्राइट फ्रिंज इज n लैम्डा d by d. सो अगर y 9 है, सो इट विल बी 9 लैम्डा d by स्मॉल d। याद आ रहा है? कुछ ऐसा लिख सकते हैं हम।
वहीं पे अगर आप लैम्बडा में 2 लगा दो तो ऊपर भी तुमको 2 लगाना पड़ेगा, देन इट विल बिकम इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2। सो आप इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2 बोलो या सिर्फ n लैम्बडा बोलो, दैट इज ओके, बोथ इज ओके। कुछ समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? गाइस प्लीज यस और नो? हाँ मिस। Okay, so for bright band y का value, y का फॉर्मूला was n lambda d by d. So n क्या है यहाँ पे? 9th bright fringe है, so 9 lambda d by d. Now for dark band, the formula was 2n minus 1 lambda d by 2d. याद है? डार्क बैंड के लिए ये फॉर्मूला होता है। So y2 है, इसको मैं डैश से रिप्रेजेंट करती हूँ। y dash 2 है, तो इट इज n की जगह पे 2 आ जाएगा, 2 into 2 minus 1 lambda d by 2d, that is 4 minus 1 3 lambda d by 2d, correct? This is 9 lambda d by d, this is 3 lambda d by 2d। इसको लेकर आओ यहाँ पे, y9 minus y dash 2 9 lambda d by d minus 3 lambda d by 2d, करेक्ट है? ये वैल्यू दी हुई है, आपके पास कैपिटल डी है, आपके पास स्मॉल डी है, ये डिफरेंस आपको दिया हुआ है। सिर्फ आपको इनको सी, अब यहाँ पर यही चीज करने का फायदा हो जाएगा अगर आप इसको लैम्बडा बाय 2 के टर्म्स में ले लो। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दिया, सो इट बिकम्स इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2। दिस इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2। व्हाई इट इज इवन मल्टीपल? इट इज इन कंस्ट्रक्टिव, ब्राइट बैंड है, इट इज इन डिस्ट्रक्टिव, इसलिए ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2। ये सारी चीजें आपको दिमाग में सेट करनी है। इवन मल्टीपल इज 2n मल्टीप्लाई बाय लैम्बडा बाय 2, ऑड मल्टीपल इज 2n minus 1 लैम्बडा बाय 2। सो इसको अगर इसके बराबर करो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करोगे तो 18 लैम्बडा d by 2d minus 3 लैम्बडा d by 2d, सब्ट्रैक्ट करोगे 15 लैम्बडा d by 2d। आपको ये वैल्यू दी हुई है, दोनों के बीच का डिफरेंस दिया है, आपके पास कैपिटल डी है, आपके पास स्मॉल डी है, आपको लैम्बडा मिल जाएगा। कुछ क्लिक हो रहा है? यस, एंगस्ट्रॉम में दो 5 एंगस्ट्रॉम, अगर लैम्बडा के टर्म्स में निकालो तो वैल्यू विल बी 5890 एंगस्ट्रॉम यूनिट। यस, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। ब्राइट बैंड इज इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2, 2n लैम्बडा बाय 2, एंड डार्क बैंड इज 2n minus 1 लैम्बडा बाय 2। ये चीजें दिमाग में सेट रखनी है। अगर इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, ये इस फॉर्म में है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो तो इट विल बी 18 लैम्बडा होप आपको क्लिक हो रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? सबको क्लिक हुआ? यस मैम। यस तो मिस। ये बात कि इवन और ऑड मल्टीपल को जरा दिमाग में सेट करो, set it inside the brain। Yes, correct Ashlesha। Let's go ahead with the next sum, that is the last sum for today। Remaining sum I will send you in your PDF। ठीक है, कैन यू सी द सम? ये बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट क्या है, इसको जरा साइड करो, सिर्फ इतना देखो। द स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6400 एंगस्ट्रॉम। पहला जब स्लिट इल्यूमिनेट किया गया तो इट वाज 6400 एंगस्ट्रॉम, एंड द क्रॉस वायर ऑफ आईपीस इज एडजस्टेड टू थर्ड ब्राइट बैंड। आपका जो एक्सपेरिमेंट करते समय, okay you don't know about this experiment, let it be, it will confuse you all। let's go ahead with another one। कौन सा मिस? बाइप्रिज्म सिखाने के बाद भी ये सम जो हम कर रहे थे, we will stop it, we will do it after बाइप्रिज्म का एक्सपेरिमेंट। हम जब बाइप्रिज्म का एक्सपेरिमेंट देखेंगे उसके बाद ये सम करेंगे। so let's go ahead for the next sum। okay,
Wait for this. It is again a biprism experiment, but it is equivalent to your Young's interference pattern. In biprism experiment, the distance between the slit and the screen is 1 meter. The separation between the two virtual sources. ये आपके virtual sources आपके दो slits है. ये two virtual images जो दिखा रहा है, it's your slits. Two virtual images of the slit is 0.5 centimeters. An interference pattern is obtained with a light of 3,500 angstrom. Find the distance between 5th and the 10th bright band on the same side of the central bright band. क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? एक एक्सपेरिमेंट में है जिसके अंदर स्क्रीन 1 मीटर डिस्टेंस पे रखी गई है फ्रॉम द सोर्स, फ्रॉम द स्लिट. वो दोनों सोर्सेस के बीच में ये जो दो सोर्सेस हमने S1 और S2 बनाए, दे आर आल्सो कॉल्ड एज वर्चुअल सोर्सेस. क्योंकि आपका प्राइमरी सोर्स से सेकेंडरी सोर्स बनाया जाता है तो उसको वर्चुअल भी बोला जाता है. ओके, तो वो जो दो वर्चुअल सोर्सेस बने हैं उनके बीच का डिस्टेंस इज 0.5 सेंटीमीटर्स. एंड इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड. इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन किया गया है. आपको 5th और 10th ब्राइट बैंड के बीच का डिस्टेंस निकालना है और ये बोला है कि दोनों के दोनों सेम साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड पे है. दोनों के दोनों सेम साइड पे है. आपको मैंने बताया था अगर सेम साइड पे है तो यू नीड टू सबट्रैक्ट, और अगर अपोजिट साइड्स पे है सेंट्रल ब्राइट बैंड से तो यू नीड टू ऐड. ये चीज दिमाग में सेट करके रखो. ऑन द सेम साइड बोला इसलिए वी आर सबट्रैक्टिंग. ऑन डिफरेंट साइड्स बोलता तो हम लोगों को ऐड करना पड़ता. ये चीज मैंने आपको सिखाई है पढ़ाते वक्त. Yes, answer is 3.5 into 10 raised to minus 4 meters. Correct है. हेलो मिस, बोलो. वो yn इक्वल्स टू n लैम्डा d by d का फॉर्मूला यूज किया तो 3.5 आंसर आया. 3.5 unit. 3. What is unit? यूनिट फाइंड आउट करो. आप फिजिक्स में बिना यूनिट के बात नहीं कर सकते. आप जाके दुकान वाले को बोल सकते हो क्या एक चावल दो. आया आंसर? Akansha, use the unit as well. What is the unit? You cannot talk without unit. हैबिट ही मत रखो यूनिट के बिना कुछ करने की. Yes, Amla, it's correct. 0.35 millimeters. Yeah.
Done? Yes, correct, Shruti. Answer is right. Let's go ahead with the next sum. That is the last sum for today, and then we will go ahead with some new concepts. This sum. In a biprism experiment, the wavelength of this biprism experiment is used for Young's experiment. Young's का जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट को बाइप्रिज्म के हेल्प से किया जाता है. I'll explain you what does this term means. ये बाइप्रिज्म क्या है ये हम आगे सीखेंगे. बट आप जो यंग्स एक्सपेरिमेंट देख रहे हो ना, वो आज के टाइम में इस बाइप्रिज्म के सेटअप से किया जाता है. इसलिए आपको हर टर्म में बाइप्रिज्म वर्ड यूज करके मिल रहा है. ये बाइप्रिज्म क्या है, ये क्या सेटअप होता है यंग्स एक्सपेरिमेंट मिलने के लिए, वो मैं आपको अभी इस सम के बाद सिखाऊंगी. इस टर्म का मीनिंग क्या है, व्हाट इज दिस सेटअप मेड अप ऑफ, कि हमको यंग्स एक्सपेरिमेंट देखने के लिए मिलता है. सो नाउअडेज एक्सपेरिमेंट्स आर डन विद दिस बाइप्रिज्म सेटअप, इसीलिए इसको बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट बोला जा रहा है. बट एक्चुअली इट इज एन इंटरफेरेंस, इट इज एन एक्सपेरिमेंट टू प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न. जैसे यंग्स ने इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट किया था, वैसे ही आज के टाइम में बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट्स का यूज किया जाता है इंटरफेरेंस पैटर्न बनाने के लिए. ओके, सो in a biprism experiment, the wavelength of red light used is 6000 angstrom and nth bright band is obtained at point P. कोई तो एक bright band बना है किसी point P पे. Keeping the same setting, उन्होंने distance same रखा है slits के बीच का, sources का और source slit और screen के बीच का distance same रखा है, मतलब बाकी सारी settings उन्होंने same रखी हुई है. The source is replaced by a source of green light. अब उन्होंने source को replace किया है. पहले the source was of red light, 6000 angstrom का source था. अब उन्होंने ग्रीन लाइट से उसी सोर्स को रिप्लेस कर दिया है जिसका वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम है, और वही ब्राइट बैंड अब हमको n प्लस nth ब्राइट बैंड की पोजीशन पे मिली है. एंड n प्लस n 1th ब्राइट बैंड ऑफ ग्रीन लाइट कोइंसाइड्स विद द पॉइंट P. मतलब जहां पर nth ब्राइट बैंड बन रहा था इस रेड लाइट की वजह से, वहीं पर n प्लस 1th ब्राइट बैंड मिल रहा है ग्रीन लाइट की वजह से. मतलब ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को कोइंसाइड हो रहे हैं. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n, आपको ये n निकालना है. समझ में आया क्या है? सम लिखो, मैं क्या बोली जरा सम ध्यान से देखो, उसके बाद वापस समझाती हूँ क्या बोल रहा है. लेट्स डिस्कस द सम. वापस सम जरा देखते हैं. या कोई है ऐसा जो मुझे सम समझा सकता है? कोई है ऐसा जो मुझे ये सम समझा सकता है? अश्विनी, कैन यू ट्राई? अनिता, अश्विनी, प्रियंका, प्रियंका चकोर. Yes, miss. प्रियंका जी देर. हाँ हूँ. समझा सकते हो क्या बोल रहे हैं? क्या? हेलो. ये सम मुझे समझा सकते हो क्या बोल रहा है? हेलो, am I मतलब audible? क्वेश्चन समझा है मुझे, पर वो कैसे करने का वो नहीं समझा. हेलो. पहले आप मुझे क्वेश्चन समझाओ. अच्छा. आप मुझे क्वेश्चन समझाओ, मैं आपको हिंट देती हूँ. हाँ, सबसे पहले हमको वेवलेंथ दिया है रेड लाइट के लिए, वो है 6000 एंगस्ट्रॉम एंड n1th ब्राइट बैंड इज ऑब्टेन पॉइंट P ऑन द स्क्रीन. और जो उसके बाद सोर्स, क्या किया? हाँ जो हमारा सोर्स है ना, हमने उसको रिप्लेस किया सोर्स ऑफ ग्रीन लाइट के. पहले रेड लाइट थी, तो बाद में हमने सोर्स पे ग्रीन लाइट किया, रिप्लेस्ड किया, तो फिर वेवलेंथ हमें 5000 एंगस्ट्रॉम मिलता है. और जो n+1th ब्राइट बैंड ऑफ ग्रीन लाइट है वो कोइंसाइड होता है पॉइंट P से, तो फिर हमको वैल्यू ऑफ n निकालना है ना. यस. सी, क्वेश्चन ऐसा है कि आपके पास, आप एक यंग्स एक्सपेरिमेंट कर रहे हो. ओके, यंग्स एक्सपेरिमेंट में आपको पता है कि क्या सेटअप होता है. दो स्लिट्स होती है जिनका डिस्टेंस स्मॉल d होता है. लेट्स ड्रॉ डायग्राम. सारी चीजें डायग्राम के हेल्प से करते हैं. जरा इसको डायग्राम के हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा है. लेट्स गो अहेड. एक बात याद रखो, इन स्लिट्स को वर्चुअल इमेजेस भी बोला जाता है या वर्चुअल सोर्सेस भी बोला जाता है, क्योंकि ये स्लिट्स रियल सोर्सेस नहीं होती है, इनको बनाया जाता है. ओके, सो वो बोल रहा है कि दो स्लिट्स है, ये एक मेन सोर्स से बन रही है, दैट इज योर, पहले उन्होंने रेड लाइट यूज की है. रेड लाइट से एक
दिस इज अ स्क्रीन, सोर्सेस के बीच का, दिस स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस इज स्मॉल डी, दिस डिस्टेंस इज कैपिटल डी। ओके, उन्होंने बोला कि जब रेड लाइट से बनाया तो उनको पी पॉइंट पे nth ब्राइट बैंड मिला, दे गॉट nth ब्राइट बैंड, कोई एक नंबर मिला। जब उन्होंने सारे सेटअप्स को सेम रखा, मतलब स्मॉल डी सेम रखा है, कैपिटल डी सेम रखा है, सिर्फ अब इस रेड लाइट को हटाकर उन्होंने ग्रीन लाइट का सोर्स यूज किया है, तो उनको क्या मिला कि इसी पॉइंट पे एट पॉइंट P अब nth ब्राइट बैंड नहीं मिल रहा है, n+1th ब्राइट बैंड मिल रहा है। दे आर गेटिंग n+1th ब्राइट बैंड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। हम ये कहां से देख रहे हैं? सेंट्रल मैक्सिमा से। अब मुझे बता सकते हो कब ये पॉसिबल है कि एक ही पॉइंट पे पहले nth ब्राइट बैंड मिले और जब दूसरा लाइट यूज करूं तो यहाँ पे n+1 मिल जाए? पहले जब मैंने, प्लीज लिसन, प्लीज अंडरस्टैंड द थिंग्स, जब मैंने रेड लाइट यूज की यहाँ पे सिर्फ n लोग बैठ पाए, अब मैं ग्रीन लाइट यूज कर रही हूँ तो यहाँ पे n+1 लोग बैठ पा रहे हैं। मतलब हो क्या रहा है, समझ में आ रहा है कुछ? ब्रांड भी छोटा है ना उसका स्क्रीन का, इसलिए ऐसा हुआ होगा। एग्जैक्टली, ये जो विड्थ है ना ये छोटा हुआ है वेवलेंथ की वजह से। जहां पर पहले सिर्फ n ब्राइट बैंड बैठ पा रहे थे, वहां पे अब टोटल कितने बैठ पा रहे हैं ग्रीन लाइट यूज करने के बाद? n+1 बैठ पा रहे हैं। सो जहां पर nth ब्राइट बैंड मिल रहा था वहां पे n+1th ब्राइट बैंड मिल रहा है। हमको क्या कैलकुलेट करना है? हमको ये n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि ये n है कितना। यू नीड टू कैलकुलेट n। से डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ का सेम ही है ना, ये तो सेम ही है, पर पहले nth बैठ रहा है, पहले सिर्फ n नंबर्स बैठ पा रहे हैं, अब n+1 बैठ पा रहे हैं। मतलब ये तो चेंज नहीं हो रहा है। ये डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा के सेंटर से यहाँ तक का सेंटर का डिस्टेंस थोड़ी चेंज हुआ है, सिर्फ इसमें बैठने वाले लोग बढ़ गए हैं ग्रीन लाइट यूज करने के बाद। मींस डिस्टेंस इज सेम। फाइव है क्या? क्या 5 है? समझ में आया क्वेश्चन क्या है? यस, n5 आएगा आपका। क्या करोगे? यस, काफी लोगों का आंसर आ गया। क्या करोगे? मैंने एक हिंट दे दिया था बोलते वक्त कि ये सेम है, सिर्फ उसमें इतने में पहले n लोग बैठ रहे थे, फिर बाद में n+1 बैठने लगे, मतलब x इज सेम। यस यस, करेक्ट पवन, करेक्ट राहुल, थिंक अबाउट इट। दिस इज द क्वेश्चन। जो लोगों को नहीं आया जरा ट्राई करो। सेंट्रल मैक्सिमा से उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही है, उसका कोई चेंजेस नहीं हुआ है, पर पहले n लोग बैठ रहे थे, फिर n+1 बैठने लगे, बस यही डिफरेंस आया है। वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट इज 6000, वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट इज 5000। एक चीज समझ रहा है, वेवलेंथ कम हुआ तो जो फ्रिंज विड्थ का डिस्टेंसेस होता है वो भी छोटा छोटा होते जाता है। इसलिए अगर पहले 5 लोग बैठ रहे थे तो जब ग्रीन लाइट यूज किया तो 6 लोग बैठने लगे। करेक्ट है अभिषेक? कैसे करोगे? कोई बताएगा मुझे कैसे करोगे? एनीवन हियर? अभिषेक, चलो बताओ कैसे किया। मैम y तो सेम ही रहेगा ना दोनों का, तो इक्वल हाँ। करते हैं दोनों को। बताओ जरा, स्टेप्स बताओ, मैं लिखते जाती हूँ। क्या करूँ? हाँ पहले मैम थोड़ा ऊपर दिखाओ ना जरा, कहाँ तक पहुंची हो? पहले लेमडा वाई, मैम एक मिनट, मैम पहले y का फार्मूला यूज करेंगे हम। हेलो, ओके, y का हाँ फॉर्मूला y यूज कर रहे हैं, ठीक है। yn इज इक्वल्स टू n लैम्डा d बाई डी, यही फॉर्मूला हाँ यूज करना था। हाँ मैम, ओके, ये फॉर्मूला क्यों यूज किया? 2n-1 वाला क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि ये ब्राइट बैंड मिल रहा है ना। एग्जैक्टली,
क्योंकि ये ब्राइट बैंड मिल रहा है इसलिए आप n लैम्डा d बाई डी, या फिर इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 2n लैम्डा d बाई 2d, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 में भी लिखा जा सकता है. दिस आर द टू वेज टू रिप्रेजेंट अ ब्राइट बैंड. ओके, गो अहेड. आगे क्या करूं? फिर उसके बाद एन वाई एन निकालना है हमें ना पहले रेड लाइट के लिए. ओके, आपका हाँ रेड लाइट के लिए वाई एन. ऐसे करने से अच्छा एक काम और कर सकते हो. वाई एन ऑफ रेड इज इक्वल टू वाई एन प्लस 1 ऑफ ग्रीन, क्योंकि वाई तो दोनों के लिए सेम ही रहने वाला है. सिर्फ हाँ, यहाँ पे same n ही लोग रहेगा. बैठेंगे, यहाँ पे n प्लस 1 बैठेंगे. करेक्ट. सो यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा इट विल बी n लैम्डा d बाई डी, और यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा इट विल बी n प्लस 1 लैम्डा d बाई डी. जहां पर n था, जहां पे n लोग बैठे थे वहां पे n लैम्डा d बाई डी, जहां पर n प्लस 1 बैठे वहां पर n प्लस 1 लैम्डा d बाई डी. अब ये रेड लाइट वाला था, ये ग्रीन लाइट वाला है, बाकी सेटअप्स तो सेम है तो वो तो कैंसिल हो जाएगा. सो दिस विल बी n into lambda r is equals to n plus 1 into lambda g. अब n वालों को एक साथ भेज दो, लैम्डा वालों को एक साथ लाओ, कैलकुलेट द n वैल्यू, हो गया. दैट्स ऑल. सबको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ये दोनों एक ही मतलब है, सिर्फ एक को मैंने n लैम्डा के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया है, दूसरे को मैंने 2n लैम्डा बाय 2 में रिप्रेजेंट किया है. दैट्स ऑल. तो मैंने ये वाले फॉर्मूले को आगे लेके मैं यूज करती गई हूँ. कोई कंफ्यूजन नहीं है. ये वाला फॉर्मूला भी लोगे तो यहाँ पर 2n आ जाएगा और यहाँ पे 2n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 आ जाएगा. कोई कंफ्यूजन मत लाना अंदर कि अलग अलग फॉर्मूलाज है. सिर्फ ये कर दिया कि ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें इसी फॉर्मूले में. तो जो कन्वीनियंट हो, जो दिमाग में सेट हो वही यूज करो, हर जगह यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सबको समझा? सबको समझा? यस और नो? Yes, miss. ओके, एक और सम करें. Okay, miss. ओके, इट्स 11:45. ठीक है, मैं बाकी के सम्स आपको पीडीएफ में सेंड करूंगी. नाउ आई एम गोइंग टू चेक कि जो लोगों ने सम्स किए हैं. कोई लीव नहीं करेगा. एक बात याद रखो, प्रतिभा मैम इज ऑब्जर्विंग यू. अगर किसी ने मेरे बोले बिना लीव किया तो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स यू आर नॉट गोइंग टू सिट इन माय लेक्चर. प्रतिभा मैम. हाँ बोलो. हाँ मैम, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए, इनका सम्स चेक करना है.